এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 2025 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব গৃহমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰি দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু কেজৰিৱালৰ এটা মন্তব্যই এটা দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে সঁচাকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব নেকি অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আসন এৰি দিব নেকি অমিত শ্বাহক তাক লৈ ইতিমধ্যে দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কি কৈছিল কেজৰিৱালে সঁচাকৈ কেজৰিৱালৰ ভৱিষ্যতবাণী সঁচা হ'ব নেকি এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ বিগ পলিটিকেল আপডেট অমিত শ্বাহে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 2025 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবেই প্ৰচাৰ চলাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 25 বছৰ 75 বছৰ হ'লেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে কেজৰিৱালে আৰু কেজৰিৱালৰ সংবাদ মেলে দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কেজৰিৱাল আৰু অখিলেশ যাদৱৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে দুইজন নেতাই আৰু 220খনৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পুনৰবাৰ জনাইছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিগ পলিটিকেল আপডেট অমিত শ্বাহে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে আৰু 2025 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে এই মন্তব্য কেজৰিৱালৰ 75 বছৰ হ'লেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিব মোদীয়ে আৰু 2025 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 75 বছৰ হ'ব আৰু সেই দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিব মোদীয়ে আৰু সেই দিনাৰ পৰাই দেশৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু 220খনৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কেজৰিৱালে এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিছিল আমি পুনে পুনে কেজৰিৱালৰ মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता साफ कर दिया उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था जब अपनी बारी आई तो नहीं तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता साफ कर दिया उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था जब अपनी बारी आई तो नहीं तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया उनका पत्ता साफ कर दिया
उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। আৰু এয়া इसके আছিল ऊपर দিল্লীৰ मोदी जी মুখ্যমন্ত্ৰী पिछले 1-2 অৰবিন্দ साल से কেজৰিৱালৰ लगे भी हुए মন্তব্য हैं, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। क्योंकि কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেজৰিৱাল অখিলেশ যাদৱৰ সংবাদ মেলে দেশৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কি কথা কৈছিল কেজৰিৱালে পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। অমিত শ্বাহে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী, মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 17 ছেপ্টেম্বৰ 2025 দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব অমিত শ্বাহে। আৰু অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইমান প্ৰচাৰ চলাই আছে বুলি কৈছে। 75 বছৰ হ'লেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিব মোদীয়ে। কেজৰিৱালৰ সংবাদ মেলে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেজৰিৱাল আৰু অখিলেশ যাদৱৰ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 220খনৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে নাপায় বুলিও মন্তব্য কৰিছে কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালে কি মন্তব্য কৰিছিল পুনৰবাৰ শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। तो अब अगले साल 17